ये जो So many states. Namaskar. Morning, sir. Morning. Kapoor sir, Namaskar. Dr. Upinder Dhar, Honorable Vice Chancellor. Namaskar, Namaskar. Kapoor sir. Namaskar. sir. Namaskar ji. So we are ready. If you permit, we can start, sir. Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Rupa, madam. Yes, sir. Honorable Chief Guest, Padma Bhushan, Dr. Kapil Kapoor, former Professor, Center for Linguistics and English, New Delhi. Honorable Chancellor, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, Shri Purushottam Dasji Pasari. Honorable Vice Chancellor, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, Dr. Upinder Dhar. Honorable Secretary, Shri Vaishnav Vidyapeeth Trust, Shri Kamal Narayanji Buradia. Distinguished trustees from Shri Vaishnav Trust, Rector and Dean FDSR, Dr. Santosh Dhar. Joint Registrar, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, Dr. Arvind Singh. Dean Faculty of Engineering and Architecture, Dr. Namit Gupta. HOIs, HODs, faculty members, and dear students. I extend a warm welcome to each one of you as we gather here today to celebrate a momentous occasion, the 10th Foundation Day of our revered Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. This day holds a special place in our hearts, for it marks the journey of this university, a journey that began 9 years ago with a vision to nurture minds, foster knowledge, and build a community of learners and leaders. Today, as we stand on the foundation laid by visionaries, founders, and generations of hardworking individuals, we not only celebrate our past achievements, but also look forward to the promising futures that lies ahead. Before we delve into the event plan for the day, let's take a moment to express our heartfelt gratitude to those who have played a pivotal role in shaping the destiny of our university. To our founders, whose dreams laid the cornerstone of this university, to the faculty members, whose dedication has fueled the flame of knowledge, and to the students, past and present, who bring life and vibrancy to these hallowed halls. We salute you all. Now, as we embark on this intellectual journey during our Foundation Day celebration, let us invoke the blessings of Ma Saraswati, the embodiment of wisdom, knowledge, and creativity. I request the technical team to facilitate virtual lamp lighting. या
You are muted, Rupa ma'am. It is with immense pleasure and honor that we extend a warm virtual welcome to our esteemed chief guest, Padma Bhushan, Dr. Kapil Kapoor. I request Honorable Chancellor and Honorable Vice Chancellor to virtually welcome our chief guest. Technical team, please facilitate. Very interesting. We are privileged to have with us a visionary leader whose guidance and commitment have been instrumental in shaping the destiny of our esteemed university. I invite Honorable Chancellor Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya Indore, Shri Purushottam Das Ji Pasari to deliver the welcome address. Over to you, sir. नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि पद्म भूषण प्रोफेसर श्री कपिल जी कपूर, पूर्व उप कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, श्री वैष्णव विद्यापीठ ट्रस्ट के सचिव श्री कमल नारायण जी भुरारिया, श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उपेंद्र धर, श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारमार्थिक न्यास के समस्त ट्रस्टीगण, सभी अतिथिगण, आज के कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नमित गुप्ता, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विद्वान शिक्षकगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमारे इस विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत ही गौरवमयी एवं पुनीत क्षण है जब श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय सफलतापूर्वक अपनी स्थापना के 9 वर्ष पूर्ण करके 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस विशेष दिन को हम प्रतिवर्ष की भांति आज दिनांक 8 जनवरी को आप सभी की उपस्थिति में मना रहे हैं। बंधुओं, श्री वैष्णव ट्रस्ट एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं ने गत 140 वर्षों से इंदौर शहर में नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को आधार मानकर जन सेवा एवं जन कल्याण के अनेक प्रकल्प संचालित किए हैं। सभी पूर्ववर्ती संस्थाओं की दूरदर्शितापूर्ण नीतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप संस्था द्वारा सर्वप्रथम 1925 में श्री वैष्णव आयुर्वेदिक औषधालय एवं श्री वैष्णव अन्न क्षेत्र एवं श्री रामकृष्ण बाग की स्थापना की थी। औषधालय विगत 89 वर्षों से आज भी संचालित है एवं अब इसमें आयुर्वेदिक, एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक पद्धति से भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सन 1951 में श्री क्लाथ मार्केट वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की गई। वैष्णव स्कूल की स्थापना एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। इसके पश्चात 1962 में श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक, 1970 में श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय, 1981 में श्री क्लॉथ मार्केट वैष्णव बाल मंदिर, 1987 में श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 1992 में श्री वैष्णव कन्या विद्यालय, 1993 में श्री वैष्णव एकेडमी, 1995 में श्री वैष्णव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान तथा सन 2005 में श्री वैष्णव विधि संस्थान एवं श्री वैष्णव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, 2019 में श्री वैष्णव स्पोर्ट्स एकेडमी तथा अभी वर्ष 2023 में श्री वैष्णव महिला प्रशिक्षण केंद्र का भी शुभारंभ किया गया है। आज इन सभी संस्थाओं में 25,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्ष 2015 से श्री वैष्णव डायग्नोस्टिक एवं किडनी सेंटर खजराना एवं वर्ष 2019 में राजमुल्ला में स्थापित किया गया, जिसमें मरीजों को न्यूनतम दर 400 रुपये में डायलिसिस किया जा रहा है। साथ ही न्यूनतम दर में फिजियोथेरेपी एवं पंचकर्म की भी सुविधा यहाँ प्रदान की जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष में रुपये 50 लाख के अतिरिक्त 50 लाख से लगभग की शैक्षणिक सहायता ट्रस्ट द्वारा प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि न लाभ न हानि के आधार पर संचालित ये सभी संस्थाएं अपनी प्रतिष्ठा से संपूर्ण प्रदेश को गौरवान्वित कर रही है। सभी शासकीय औपचारिकताएं को पूर्ण करने के पश्चात सन 2015 में श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय की स्थापना छात्रों के बेहतर भविष्य को उत्कृष्ट शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से सुलभ करने की दृष्टि से की गई है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य ऐसा शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है जिससे कि बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रेरणा मिल सके
एवं मूल्य आधारित नेतृत्व की क्षमता को पोषित किया जा सके। विश्वविद्यालय हमेशा सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों के विकास एवं वैश्विक समाज के विकास की ओर प्रयासरत है। विश्वविद्यालय में हम कई नवीन एकेडमिक कार्यक्रमों का भी संचालन कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बिग डाटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, मेकाट्रॉनिक्स, फॉरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर एवं डिजाइन, फूड एवं न्यूट्रिशन एवं लॉ जैसे कई नए प्रोग्राम हैं। विगत 9 वर्षों में हमने विश्वविद्यालय में 25 कंपनियों के साथ MOU किए हैं, जिनके अंतर्गत कंपनियों के सहयोग से 14 विषयों में संयुक्त रूप से पढ़ाई करवाई जा रही है। बदलते समय के साथ विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्सेज तथा इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से भी नए विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हम लगातार अपने विश्वविद्यालय नवीन तकनीक से शिक्षण कार्य करा रहे हैं। विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु एवं उनकी भाषा संबंधित कमियों को दूर करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज तथा प्रोफेशनल एथिक्स जैसे महत्वपूर्ण विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं। अंत में मैं माननीय प्रोफेसर श्री कपिल कपूर जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से अमूल्य समय हमारे विश्वविद्यालय के 10वें स्थापना दिवस पर दिया। मुझे विश्वास है कि हमारा विश्वविद्यालय इसी प्रकार विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करता रहेगा एवं देश के भविष्य की नींव सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निरंतर देता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वैष्णव। Thank you, sir. It is now my proud privilege to invite a leader whose guidance and vision have been instrumental in shaping the path of Sri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Dr. Upinder Dhar, Honorable Vice Chancellor of the University. I invite sir to give opening remarks on this auspicious occasion. Over to you, sir. Good morning to all of you. Dr. Kapil Kapoor ji, our chief guest on this special occasion, former Pro Vice Chancellor and Professor of Linguistics at Jawaharlal Nehru University, Delhi, Honorable Chancellor Shri Purushottam Das Ji Pasari, Honorary Secretary Trust Shri Kamal Narayan Ji Budadia, all deans, directors, faculty colleagues, colleagues from administration, and friends. At the outset, I would like to congratulate all of you for this 10th Foundation Day. As we have just now heard, Honorable Chancellor, that this institution has the legacy of 140 years because our parent trust was established in 1884 by the philanthropists of Indore at that time. There are currently there is 4th generation of trustees who are guiding light for the institution, and none of them are related. The common thread is philanthropy. They are all philanthropists. When institution was established, this university was established in 2015. One of the challenges was, how are we going to be different from other such universities, not only in the state, but also in the country? So we had to be different so that we can do things in a better way and keep on innovating. One of the important areas was in collaboration with industry, because we felt that quality education is not possible unless stakeholders are involved, particularly those
who happen to be the recruiters of the students who will be passing out from this university. So in this journey of 9 years, right from 2015, we have been able to build up a relationship with industry. We are offering number of programs with IBM, in collaboration with IBM. That none of the MOUs that we have signed is simply meant for filing. They're all active MOUs. Number of programs are offered in partnership with IBM. One program is offered in partnership with TCS. One program is offered in partnership with the Red Hats. Then in addition to that, when industry found value in the university, industry was convinced for observing what we are doing. Therefore, a number of labs have been set up in this university for the benefit of the students and faculty. For instance, we have an Apple lab set up with the assistance from Apple. We have a Mitsubishi lab set up with the assistance from Mitsubishi. There is a setup for training which has been established with the assistance from Bosch. There is an IBM lab, and so on and so forth. Point is, one of the USPs, one of the unique points that we felt in the beginning is the relationship, strong bond with the industry, which we have been able to do or develop successfully. Incidentally, National Education Policy was released on 29th of July 2020. We found that even NEP 2020 emphasizes on the relationship between academia and industry. So it gave us a pat on our back or confidence that we are on the right track. In addition to this, we believe that over the period of time, that during coming times, for work, there won't be any political boundary for the students. A student may work anywhere, not only in the country, but even abroad. Therefore, it was necessary to give exposure to the students from the other universities, the international universities. So we tied up, we had an MOU with St. Cloud State University, which is a state university, a public university in United States, in Minnesota. And it is a 160 years old university. We signed an MOU with them, and together are offering certain programs to the students. Then we signed another MOU with Hanyang University, which is in Seoul, South Korea. Intention has been to give international exposure to the students. So deans and directors and professors have been visiting from these universities, particularly more from St. Cloud State University, Minnesota, USA. In fact, every year in the month of January, February, we organize an international congress in association with St. Cloud State University. And every year in this conference, people travel from USA to India to attend this conference, this congress. So with these initiatives, intention is to offer quality education to the students. We emphasize on developing good human beings. It is not to shape students in various professions. It is not enough to teach only what is given in the curriculum for a particular stream of education. Therefore, right from the beginning, we made human values for a compulsory course for all. Anyone who is admitted in Sri Vaishnava Vidyapeeth Vishwavidyalaya, irrespective of the stream, has to pass this particular course, which is a 4-credit course. So it is not taken lightly. Everyone has to go through this course on human values. Similarly, human values and professional ethics. Then there is another course that we made compulsory for all. It is mandatory for all the students who are admitted here. That is on environment studies, so that our students develop sensitivity towards the environment. And we are very happy that to a great extent, we are contributing towards the fulfillment of the sustainable goals set up by the United Nations. We are also Center for Excellence in
sustainable goals in sustainability. Under that center, number of programs are conducted to sensitize the students about the environment and other areas where sustainability is a must, where sustainability is necessary. It is necessary to make the message given to the students is that it is necessary to leave this world a happier place for the generations to come, a safer place for the generations to come, a healthier place for the generations to come. Therefore, intention is to not only teach, but also facilitate the students in becoming good citizens, good human beings. With these words, I wish all the best to everyone who is a part of Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. And I'm thankful to Professor for accepting our invitation. Since this time we are doing it online, but I'm sure that he will accept our invitation to visit our university very soon, maybe during 2024 itself. So with these words, thank you very much. Thank you, sir. Today, on this occasion of 10th Foundation Day, we are fortunate to have the epitome of knowledge and wisdom, Padma Bhushan, Professor Kapil Kapoor, with us as chief guest. I invite Dean Faculty of Engineering and Architecture, Dr. Namit Gupta, to read the citation for our esteemed guest, Padma Bhushan, Dr. Kapil Kapoor. Over to you, sir. Thank you, Rupa ma'am. Good morning to all the dignitaries. It is a proud privilege for me to read the citation of our today's chief guest, Padma Bhushan, Dr. Kapil Kapoor. I quote, Padma Bhushan Dr. Kapil Kapoor was born on 17th of November 1940. He is a former Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University and has served as a professor at the Center for Linguistics and English and Center for Sanskrit Studies till 2005. He was Chancellor at Mahatma Gandhi International Hindi University, Wardha from 2014 to 2018 and Dean of the School of Language, Literature and Culture Studies, JNU from 96 to 99. Dr. Kapoor is currently Chairman of the Editorial Committee, Indian Historical Records Committee, National Archives, Member Executive Committee, Nehru Memorial Museum and Library, Member Committee for Reorganization of Aesthetics and Ambience of Rashtrapati Bhavan. Dr. Kapoor has more than 80 articles and 90 keynote addresses to his credit. His teaching and research interests include literary and linguistic theories, both Indian and Western, philosophy of language, 19th century British life, literature and thought, and Indian intellectual traditions. In 2008, he lectured in the House of Lords, UK, on society and polity in India. He has been a nominated member of the governing body of Indian Institute of Advanced Study, Shimla, and of the governing body of Indian Council of Philosophical Research. He has been a member of the Monitoring and Planning Committee of Central University of Higher Tibetan Studies, Sarnath. He was nominated member of the Academic Council of the Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad, and of the Executive Councils of Central University of Hyderabad and of Gurukul Kangdi, Haridwar. He is a nominated member of the Advisory Board for India Studies at Trinity University, Dublin. He is a nominated Birla Foundation Fellow 2007. His books, Dimensions of Panini Grammar, Indian Grammatical System, and Texts and Interpretation, the Indian Tradition, were published in 2005. The book, Indian Knowledge Systems, containing 2 volumes, was edited by him and was published in 2005. The book's titled Literary Theory, Indian Conceptual Framework, 1998, Canonical Texts of Literary Criticism, 1995, Language, Literature and Linguistics, The Indian Perspective, 1994, and South Asian Love Poetry, 1994, are among his earlier publications. His book, Rati Bhakti, is India's narrative traditions
written as a Birla Foundation Fellow in 2007 and 8, and it has been published in 2011. His book Abhinav Gupta Manuscripts and Files has been accepted by UNESCO as intangible heritage. He is editor-in-chief of 11-volume Encyclopedia of Hinduism, sponsored by Paramarth Niketan, India Heritage Research Foundation, USA, which has been published in January 2012. He has also contributed as chief editor of Sahitya Academy sponsored Encyclopedia of Indian Poetics, which was a UNESCO project published in 2022. Dr. Kapoor has been appointed as core member of Curriculum Development Committee for Sanskrit by UGC in 2000, a member of UGC Committee for Orissa University of Culture in 2001, member of the UGC Review Committee for Punjab University in 2000, and member of 10th Plan UGC Committee for University of Manipur in 2002. He has been a convener of 10th Plan Committee for the University of Kashmir, Srinagar, and the Committee for Tamil University, Tanjavur in 2007. And he has convened 11th Plan Committee of North Gujarat University, Patan in 2007 and 2008. In 2003, Dr. Kapoor was awarded with Sanskrit Mitra Award by MHRD Government of India for his contribution to Sanskrit studies. In 2010, he was honored by Shiksha Sanskriti Utthan Nyas, New Delhi, for contribution to Indian education. In 2011, he was honored at Maria Luisa University, Los Angeles, by the Uberai Foundation, California, USA, for contribution to linguistics and Indic civilization studies. In 2012, he was honored by Mahant Adityanath Yogi Ji on behalf of Mahant Kuwar Narendra Pratap Singh Kalyankari Trust, Gorakhpur, for contribution to Indian knowledge tradition. In 2023, Dr. Kapoor has been conferred with Padma Bhushan by Mananiya Rashtrapati Government of India for his exceptional and distinguished service to language and literature. I unquote. Shri Vaishnav Vidyapit Vishwavidyalaya, Indore is highly privileged to present this citation to Professor Kapil Kapoor on the occasion of 10th Foundation Day on 8th of January 2024. I would request the AV team to please facilitate, and I would request Honorable Chancellor and VC Sir to join virtually to present the citation to Dr. Kapil Kapoor. AV team, please. Now, without making any delays, I would now request our today's chief guest, Dr. Kapil Kapoor, to please deliver his talk to us. Over to you, sir. बहुत कृपा गुप्ता जी, आपने इतना समय लगाया गिनती करने में। जब भी मैं 84 साल का हूँ, आई एम नाउ 84, और मुझे 63 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। आजकल भी पढ़ाता हूँ और अपने बारे में बहुत सुनता रहता हूँ, और जब सुनता हूँ तो लगता है, मन में आता है कि ये किसके बारे में कह रहे हैं। एक तो ये भास आता है कि ये किसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि हम तो पीछे देखते नहीं, जो है वो है, और जो आगे करना है वही देखते हैं। और दूसरी, कई बार ऐसा लगता है कि मेरी कोई ओबिचुअरी पढ़ रहा है। ये थे, पर मैं अभी हूँ भी। भोले की कृपा जब तक रहेगी, चलता रहेगा। मैं चांसलर साहब का धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, रहेंगे भी। बड़ी कृपा आपकी था जी। चांसलर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये आके और यहाँ रह के और मेरे बारे में अच्छे शब्द बोले। और वाइस चांसलर साहब शायद कश्मीर के हैं। धर जी, आप कश्मीर के हैं।
तो जी हाँ, कश्मीर का। आपका कश्मीर तो भारत का मस्तक है, और जो ज्ञान का जो स्रोत कश्मीर रहा है, वो हम आशा करते हैं कि पुनः वो स्रोत फिर बहने लगेगा। आशा करते हैं। जी जरूर आपके बहुत जरूर। धन्यवाद। आपका आपका भाषण सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपकी बातें सुन के भी बड़ा अच्छा लगा। सबसे अच्छा ये लगा कि सारी भौतिक चीजें गिनाने के बाद आपने कहा कि हम ह्यूमन वैल्यूज का भी कोर्स पढ़ाते हैं। अ, एक समय था शायद आप शुरू इससे करते फिर भौतिक पे जाते, पर आजकल का जमाना ऐसा है कि पहले भौतिक ही गिनाना पड़ता है, क्योंकि उससे क्रेडिबिलिटी बनती है। तो इसलिए, पर ये बड़ी अच्छी बात है कि एक कंपलसरी कोर्स ह्यूमन वैल्यूज में आप पढ़ा पाते हैं, क्योंकि हाँ, यहाँ हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब हम हायर सेकेंडरी में वैल्यूज का कोर्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक साल हमने जो पिछले वर्ष जो छात्रा सीबीएसई को टॉप की थी, उसने टॉप किया था, उसे बुलाया कमेटी में। तो उसने कहा जी प्लीज प्लीज, ये चीजें आप मत पढ़ाइए कि सच बोलना चाहिए, दया रखनी चाहिए। ये ये बच्चों को समझ नहीं आती है और बच्चे हंसने लग जाते हैं। ये एक बहुत रेवलेशन हुई थी हमको कि हमारे देश की जो उत्कृष्ट शब्दावली है और हमारे देश का जो उत्कृष्ट ज्ञान है, जिस ज्ञान के कारण हमारा देश भारत भारत माना जाता है, वो शब्दावली अब आउट ऑफ डेट हो गई है। शब्दावली या विचार तो आउट ऑफ डेट नहीं हुए, पर उनका प्रयोग जो है वो हमारे समाज से वो हमारे समाज में आउट ऑफ प्लेस हो गया है। गिरावट शब्दावली की नहीं है, गिरावट समाज की है। और गिरावट शायद हमारे जो हमारी जो सभ्यता में जो बदलाव आया है उसकी है। और जो बदलाव आया है वो पूरे विश्व के साथ चलते चलते, एक समय था कि विश्व हमारे साथ चलता था, क्योंकि ये जो विश्व गुरु इतना बोला जाता है, वो एक संस्कृत का समास है। उसके दो अर्थ होते हैं, दोनों ही अर्थ हैं। विश्व जिसका गुरु है और जो विश्व का गुरु है। पहले हम विश्व के गुरु थे, अब कुछ कुछ सालों से 200-300 साल से विश्व हमारा गुरु है। अब हम विश्व के गुरु नहीं हैं, उनसे ही सीखते हैं, उनसे ही लेते हैं, उनसे जीवन मूल्य भी लेते हैं। और थोड़ा सा करते 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 जब लगता है कि भैया थोड़ी अच्छी बात भी होनी चाहिए, थोड़ी दूसरी बात भी होनी चाहिए, अर्थ को छोड़ के कुछ धर्म की बात भी होनी चाहिए, तो फिर हम लोग अपनी कुछ पुरानी शब्दावली को जीवित करते हैं। ये मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश में शायद इतना नहीं है, और आपके विश्वविद्यालय में शायद नहीं है, क्योंकि आपका तो जो वैष्णव है, जो कोर है आपका, जो उसके केंद्र में है, वो भागवत धर्म ही ऐसा है कि जो बच्चा उसमें बड़ा होगा या जो उन चीजों को सीखेगा, तो उसमें शायद जो जो मैं बातें कह रहा हूं वो पूरी तरह सत्य नहीं है। परंतु शिक्षा को अगर बृहत रूप से देखा जाए, भारत की शिक्षा को, तो भारत की शिक्षा बहुत ही कहना चाहिए एसिमेट्रिकल है हमारे देश के साथ, हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ। ये शिक्षा हमारी है ही नहीं। कुछ तो जमाना ही ऐसा बदल गया है, बदल रहा है, और जमाने के साथ ना बदलने के लिए एक बहुत क्लैरिटी चाहिए कि हम हैं क्या, और जमाने के साथ ना बदलने के लिए हिम्मत भी चाहिए।
और जमाने के साथ ना बदलने के लिए बहुत कुछ छोड़ने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। वो शायद चीजें आजकल कोई सिखाता पढ़ाता नहीं है। एक समय में तो घर में दादियाँ दादियाँ नानियाँ माता लोग बच्चों के बिल्कुल घुट्टी में, घुट्टी जिसको कहते हैं, घुट्टी में डाल देती थी चीजें। आजकल क्योंकि ऐसा समाज है कि हमारी बच्चियां को भी नौकरी करनी पड़ होती है, और बच्चियां बल्कि मतलब बच्चियां तो नहीं, पर कुछ आजकल के जो शिक्षित हमारे शिक्षित एजुकेशनल प्लानर्स हैं या समाज के लीडर हैं, वो सोचते हैं कि केवल माता होना काफी नहीं है, केवल माँ होना काफी नहीं है। मैं कुछ 4 साल एक रूरल गर्ल्स यूनिवर्सिटी में एडवाइजर था, ग्रामीण महिला विश्वविद्यालय में। तो वहाँ 4,000 लड़कियां हॉस्टल में रहती थी, और हॉस्टल भी 25 थे, और 25 हॉस्टलों के नाम थे हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 2, हॉस्टल नंबर 3, इस तरह। तो जब मैं वहां गया तो मैंने अधिकारियों से कहा कि ये तो जेल के नाम होते हैं, जेलों के नाम होते हैं ऐसे, प्रिजन नंबर 1, प्रिजन नंबर। और क्योंकि जो पढ़ाने, ये लड़कियां तो इतनी सिंपल हैं गांव की, इतनी स्ट्रेट, ब्यूटीफुल, क्लियर आइड गर्ल्स, अनसेल्फ कॉन्शियस, क्योंकि गांव में उनको मेल गेज का एक्सपीरियंस नहीं होता जो शहरों में होता है। तो बड़ी फ्रैंक लुक उनकी आईज में, साफ नजरें होती हैं। पर उनको जो पढ़ाने जाती हैं या पढ़ाने जाते हैं, वो जेएनयू या दिल्ली से पढ़े हुए लोग होते हैं। उनकी मानसिकता ही थोड़ी कई कई तरह से विकृत होती, और वो जाके उनको यही सिखाते हैं कि भारतवर्ष में, भारत तो वो कहते ही नहीं है, इंडिया कहते हैं, कि इंडिया में विमेन के साथ बड़ा धक्का होता है, गरीबों के साथ बड़ा धक्का होता है, दलितों के साथ बड़ा धक्का होता है, और यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, सब खराब है। ये पढ़ाया जाता है। एक समय था जब सोशल साइंस का 12वीं का जो पेपर होता था, उसमें प्रश्न ऐसे होते थे कि हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है, हमारे देश में इतना अन्याय क्यों है, हमारे देश में औरतों के साथ न्याय क्यों नहीं होता, हमारे देश में ये क्यों नहीं होता। तो वो पेपर पढ़ के मेरे जैसा व्यक्ति रोने लग जाता था कि अब बड़े खराब देश में हैं हम। पर हमने वहां एक बार लड़कियों को, 500-700 लड़कियों को हॉल में इकट्ठा करके भाषण, पहले शुरू शुरू में बोला, भाषण तो नहीं कहना चाहिए, बातचीत की। मैंने कहा बेटा, अगर हम इतने ही खराब होते जितना हमें बताया जाता है, तो ये बताओ कि 46 मानवीय सभ्यताएं हुई हैं मनुष्यता के इतिहास में, 46 सभ्यताएं हुई हैं, ये यूएनओ का डेटा है। उन 46 में से सिर्फ हमारी सनातन जो सभ्यता है, हिंदू सभ्यता जो है, हिंदू तो शब्द बाद में आया, हिंदू अप्लाई नहीं करता, वैदिक सभ्यता है हमारी। ये जो हमारी सनातन वैदिक सभ्यता है, सिर्फ ये सभ्यता ही जीवित रही और है आज भी। जबकि इसके ऊपर बहुत आक्रमण हुए, बहुत आक्रांता आए, बहुत विनाश हुआ, बहुत तरह से इसको बदलने की कोशिश की गई। तो कुछ तो हमारे में अच्छाई भी होगी, कुछ तो हमारी ताकत है ना, वो भी तो देखनी चाहिए कि क्या है, अपने को समझना। अगर हम अपने को समझेंगे नहीं, तो हम अपने को, अपनी अपनी कीमत ठीक नहीं लगाएंगे। हम अगर अपने जानते ही नहीं कि हम हैं क्या, तो हम तैयार रहेंगे बदलने के लिए कि देखिए बड़ी प्रगति हो गई है वेस्ट में, लिवर का भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, घुटने ट्रांसप्लांट हो जाते हैं,
अब तो लंग्स भी ट्रांसप्लांट हो जाती हैं। मतलब कि बाहर वाला ढांचा रहता है, अंदर से सब बदल देते। देखिए कितनी प्रगति हुई। पर जो मूल प्रश्न कोई नहीं पूछता कि इतना लंबा जीवन चाहिए किस लिए, अब करना क्या चाहते हैं, अब क्यों जीना चाहते हैं इतना। ये प्रश्न सिविलाइजेशनल क्वेश्चन है, और इसका आंसर वेस्ट में नहीं है कि आप इतना लंबा क्यों। पर अगर हम अपने आप को, हमारे यहाँ है आंसर, हमारे चरक संहिता में इसका आंसर है कि कौन सी आयु का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी आयु बढ़ानी चाहिए। पर अपने को जानते नहीं, बदलते नहीं। अब जानते नहीं तो हमें पता ही नहीं हमारा हमारा मूल्य, हमारी मूल्यवान चीजें क्या हैं, हम उनको बचाएं कैसे। इसलिए हम तैयार रहते हैं, कोई भी हवा का जो झकोरा आता है इधर से या उधर से, वो हमको हिला देता है, और हम अपने को उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं, उसी रास्ते पे जाते हैं। अब देखिए, आजकल शायद आपकी यूनिवर्सिटी नहीं, मैं एक्सेप्शन करता हूँ क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपकी, धर्मात्मा लोगों ने बनाई है, 150 साल का इतिहास है, और आप सब भी बड़े अच्छे व्यक्ति, बड़े अच्छे इंसान लगते हो, सब देखने में ही अच्छे लगते हो। तो शायद आप लोगों के यहाँ इतना नहीं होगा। तो दिल्ली वाले लोग थोड़े अलग लगते हैं। इसलिए आप अगर कभी आए, ये जो मेट्रोपॉलिटन इंडिया है वो बड़ा खराब इंडिया है। बाकी जो है वो भारत है, जो गांव का है वो भारत है, और जो मेट्रोपॉलिटन है वो इंडिया है। तो ये जो मूल्य क्या, हम हैं क्या नहीं जानते, बदलने को तैयार हैं सब है। अब देखिए हमारी, मैंने फिर कहता हूँ आपकी शुद्ध यूनिवर्सिटी शायद नहीं, हमारी यूनिवर्सिटियां आजकल एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बन गई हैं। हायर एजुकेशन जो है, मतलब हायर एजुकेशन, इट इज नॉट हायर इन द सेंस कि आपको आप आपका उत्थान हो जाएगा मानसिक या आध्यात्मिक। हायर एजुकेशन मतलब ये है कि आपकी डिग्री मोटी हो जाएगी, और शायद आपकी ज्यादा तनख्वाह की नौकरियों के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। तो ये जो यूनिवर्सिटियां हैं, ये एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज बनी हुई हैं आजकल, जहां पे, और दूसरा ये पार्किंग लॉट्स बनी हुई है। पार्किंग लॉट्स, लड़की की जब तक शादी नहीं होती उसे पढ़ाए जाओ, और लड़के की जब तक नौकरी नहीं लगती उसे पीएचडी कराए जाओ। पीएचडी कराए जाओ, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 7 साल। तो पार्किंग लॉट्स और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज एक। दूसरा, हमारी यूनिवर्सिटियों का जो दर्शन है, वो दर्शन है पैकेज फिलॉसफी। पैकेज फिलॉसफी का दर्शन, बड़े बड़े प्राइड के साथ हमने सुना, दिस ईयर वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स गॉट ए पैकेज ऑफ 1 करोड़ रुपीस। इतने हमारे कंपनियों से लोगों ने जो लड़कों को चुना, किसी को 35 लाख का पैकेज, किसी को इसका पैकेज। और इस सेंस में यूनिवर्सिटियां जो हैं वो आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं भारत देश में। क्योंकि यूनिवर्सिटियों में जो भाषा बोली जाती है अंग्रेजी, और यूनिवर्सिटियों में जो शब्दावली का प्रयोग होता है सफलता का और अर्थ का, इतने का पैकेज और इतने का पैकेज, जीवन का ध्येय क्या है कि नेबर का जो लड़का है उससे 25,000 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए। कॉम्पिटिटिव फिलोसफी, कंपटीशन। जो यूनिवर्सिटियों में भाषा बोली जाती है अंग्रेजी, और जो यूनिवर्सिटियों की शब्दावली है, और शब्दावली के साथ जो यूनिवर्सिटियों में जो जीवन का ध्येय समझाया जाता है, ये एसिमेट्रिकल है भारत के साथ। आप अगर, मैं उस यूनिवर्सिटी में देखा कि यूनिवर्सिटी से निकल के
छोटी सी सड़क पार करके अगर चाय की दुकान पे बैठ जाएं तो हमारी भाषा कोई समझता ही नहीं, हमारी शब्दावली कोई नहीं, अंग्रेजी कोई नहीं समझता। और बोले अपनी बात करना, इधर वाली भाषा बोल, कहते हैं। और जो शब्दावली है, लड़की, नई नई गांव की लड़की यूनिवर्सिटी में आके एक सेमेस्टर में पढ़ के जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचरों के हाथों में रह के, हाथों में वो जो सीख जाती है, वो घर में जाती है छुट्टी में और माँ को कहती है, माँ पूछो मत, मैंने ये सीख लिया, अब ये सीखा है, अब हमको ये सिखाया, इसके बाद मैं ये करूंगी, उसके बाद मैं ये करूंगी, और फिर मुझे इतने की नौकरी मिलेगी जब मैं एमबीए भी कर लूंगी। तो माँ कहती है, ठीक है भैया बेटे कर लेना, अभी तो आराम से बैठ जा थोड़ी देर, अब तो आराम चैन से बैठ जा, कर लियो जो करना है। तो ये जो अपवर्ड मोबिलिटी और सक्सेस एंड मनी, ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों से हमारी यूनिवर्सिटियां आइलैंड है। हमारी यूनिवर्सिटियों का जो कंटेंट है, उसका देश की संस्कृति या सभ्यता से कुछ लेना देना नहीं। वो नेचुरल है, क्योंकि हमने तो उधार में ये शिक्षा ली ना, सारी उधार में इंग्लैंड से ली, और इंग्लैंड में उस वक्त ली, और ज्यादा लंदन यूनिवर्सिटी से ली। उस वक्त ली जब लंदन यूनिवर्सिटी अपने बुरे समय में चल रही थी, मतलब वहां कोई एक्सेलेंस नहीं थी उस वक्त। अगर आप कभी अनंत कुमार स्वामी जी के का एक आर्टिकल है बड़ा अच्छा, एजुकेशन इन इंडिया, पढ़े, इंडियन एजुकेशन, तो वो बताते हैं कि जबकि लंदन में स्टैंडर्ड था ही नहीं, तो जो सब्जेक्ट वहां पढ़ाए जाते थे वो हमने लिए, और उनका सारा तरीका, तौर तरीका लिया, और वही स्ट्रक्चर बनाया और पूरे देश में फैला दिया, और वही चल रहा है। वो तो आगे निकल गए, उन्होंने अपनी कई बुराइयां छोड़ दी और कई नई चीजें शुरू कर दी। हम वहीं के वहीं अटक गए। हमने कोई, जैसे वहां उस वक्त रिलीजियस स्टडीज नहीं पढ़ाई जाती थी, हमने भी नहीं ली, पर अब वहां तो स्कूल्स ऑफ डिविनिटी है, हर यूनिवर्सिटी में स्कूल्स ऑफ डिविनिटी है। पर हम धर्म का नाम नहीं लेते आसानी से, क्योंकि सेक्युलर रहना जरूरी है ना, तो धर्म का नाम लेने से तो अधर्म हो जाता है आजकल। चाइना में वो जो शाओलिन टेम्पल है, शाओलिन बौद्ध मंदिर है, पहली सेंचुरी का, फर्स्ट सेंचुरी एडी। आजकल जो मंदिर बना वो फर्स्ट सेंचुरी का है। उसके उसमें वो ये जो मार्शल आर्ट्स हैं वो भी सिखाते हैं, मार्शल आर्ट्स वो मंदिर वाले। और मार्शल आर्ट कुंग फू जो है, जो कि हमारा केरल का एक धर्म कीर्ति पैदल चलता चलता हिमालय पार करके तिब्बत निकल के सिंकियांग से होता हुआ वहां शाओलिन पहुंचा था, और उसने ही वहां जाके ये शुरू किया था क्रियाक्रम, ट्रस्ट मलयाली टू टू टीच मार्शल आर्ट्स। आजकल मार्शल आर्ट्स से ज्यादा मेंटल आर्ट्स ज्यादा सिखाते हैं वो लोग, मेंटल मैनिपुलेशन। पर मार्शल आर्ट्स मलखंब वगैरह उनका अभी भी है। तो वहां पे इंस्टीट्यूट है, एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। वो बिल्डिंग, चाइनीज, चाइनीज मेक बिग, चाइनीज बड़ी बड़ी चीज बनाते हैं। हम सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू बनाएंगे तो 5 फुट का बनाएंगे, 5 का, ताकि पैसे कम लगे। किसी शहर में 5 फुट। वो अगर उस जनरल का स्टैचू बनाएंगे जिसने यांगसे नदी के ऊपर बांध बनाया था, तो वो उसका स्टैचू 50 फुट का बनाए, 60 फुट का बनाए। तो चाइनीज वॉल जो है, आपको पता है, इट इज द ओनली मैन मेड ऑब्जेक्ट विच इज विजिबल फ्रॉम द मून, चाइनीज वॉल। तो वो बड़ी बड़ी बनाते हैं चीजें, तो वो बिल्डिंग ह्यूज है, और उसके ऊपर 50-50 फुट के सीमेंट के लेटर्स में लिखा हुआ है,
धर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ कुंग फू, धर्मा इंस्टीट्यूट। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि आप ये शब्द हिंदुस्तान में यूज नहीं कर सकते, यू कैनॉट यूज दिस वर्ड हेयर। तो हमें हमारी शिक्षा नीति जो हमने ली, शिक्षा जो ली, शिक्षा की व्यवस्था जो ली, वही चल रही है, वही कोर्सेज, वही हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या ना, हॉस्पिटल मैंने मुंह से निकला, हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटैलिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि ज्यादा हॉस्पिटैलिटी के बाद हॉस्पिटलाइजेशन ही होती है। पर हॉस्पिटैलिटी एंड ये जो है बी टेक एंड देन मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट तो एक, जो मैनेजमेंट तो ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें झूठ बोलना सिखाया जाता है कि आप चीजों को बेचने के लिए झूठ बोलो, नहीं तो आप कैसे कैसे गुड सेल्समैन अपना माल कैसे बेचेंगे जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्रीम लगाने से रंग गोरा हो जाता है, और साथ में उसके एक गोरी सुंदर सी लड़की दिखाते हैं, तो लड़के भी सोचते हैं कि हम ऐसे ही हो जाएंगे क्रीम लगा के। तो उसके साथ आप जीवन मूल्य भी सिखाएंगे, ह्यूमन वैल्यूज। हाँ, अब अगर अब रतन टाटा जी जैसा कोई बिजनेसमैन, क्योंकि जो ऐसे बिजनेसमैन होते हैं वो जो अच्छे काम करते हैं वो तो गिनाते नहीं। शायद आपको पता है कि रतन टाटा जी ने, जब कोविड शुरू हुआ था और लोग मरने लगे, तो रतन टाटा जी ने ये फैसला लिया कि अगर उनका कोई भी, किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो जब तक उसका सबसे छोटा बच्चा बड़ा होके नौकरी नहीं करता, तब तक वो उसकी तनख्वाह देते रहेंगे, सैलरी। और ये उन्होंने एडवर्टाइज नहीं किया, एडवर्टाइज नहीं किया। पर ये तो जीवन मूल्य समझ आता है कि आपने सक्सेस भी अचीव की, आपने धन भी कमाया, पर वो हमारी संस्कृति के अनुरूप रहा। धन उपार्जन भी धर्म है, पर वो धन जो है, वो धन जो है उसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग एक गति है ना, एक गति है उसकी, नहीं तो उसका नाश तो होता ही होता है, नाश हो जाएगा उसका। तो सदुपयोग करके करना ये। और बहुत कम लोग, मैं मैनेजमेंट की कई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी लेक्चर देता हूँ, और वहां भी मैं ऐसी ही बातें कहता हूँ। अभी एक बड़ा सुंदर मैंने देखा, और अच्छी बातें रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि उनसे कुछ एक वातावरण बनता है कि रतन टाटा जी कुछ 2 साल पहले अपने एक घनिष्ठ मित्र से बोले कि कुछ अंदर का आंतरिक आनंद नहीं आ रहा, आया अभी तक। तो उनके दोस्त ने कहा कि चलिए आपको मैं एक इंस्टीट्यूट में ले जाता हूँ, वहाँ 300 बच्चे बच्चियां हैं जो बहुत विकलांग हैं, आप उनको इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन चेयर्स दे दीजिए 300 को। उन्होंने कहा चलिए देते हैं। तो वो उन्होंने दी वहां। तो एक लड़का जो बहुत ही हेल्पलेस था, छोटा लड़का था, और वो, उसको जब चेयर मिली, उसने जब चलाई, तो वो चला के रतन टाटा जी के पास आके उनकी टांग से चिपट गया और उनके उनके चेहरे की तरफ देखने लगा, देखता रहा। उन्होंने कहा हाँ बेटा कुछ और चाहिए? चुप, बेटा कुछ और चाहिए? सिर हिलाया नहीं, पर देखता रहा। तो बेटा बताओ कुछ चाहिए तो? उन्होंने कहा नहीं, मुझे देखने दीजिए, ताकि जब मैं स्वर्ग में आपको पहचानूं तो आपको शुक्रिया कह सकूं। जी, मैं आपकी पहचान अपने मन में उतारना चाहता हूं कि जब मैं आपको स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको, तब इमेजिन दैट दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट रतन टाटा वुड हैव गॉट। तो ये चीजें, आई एम, यू मे, आई इन ए वे आई हैव वंडरिंग। जस्ट वन मोमेंट सर। जोशी जी लेक्चर में हूँ, बताइए। हाँ जोशी जी लेक्चर में हूँ। अच्छा जी, ठीक है सर, सॉरी सर। तो मैं ये कह रहा था कि एजुकेशन, देखिए कई चीजें मैंने कही हैं
कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है विद आवर सिविलाइजेशन, इट इज एसिमेट्रिकल विद आवर लाइफ ऑल्सो। अभी भी you go 90 kilometers out of Delhi, 100 kilometers out of Delhi, you are in a different world, different world। वहाँ ये जो मूल्य, जिन मूल्यों से जो मूल्य हम ग्रहण करते हैं या हमें दिए जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, अब कई चीजों में है। अब देखिए, विष्णु पुराण एक ग्रंथ है हमारा, 1st सेंचुरी 2nd सेंचुरी BC का ग्रंथ है, और विष्णु पुराण में एक खंड है भारत खंड, और उसमें उन्होंने पूरा बहुत सुंदर बातें हैं उसमें। अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द थिंग्स दैट NEP टॉक्स अबाउट बट डजंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, और होगा भी नहीं, क्योंकि 3 साल तो NEP को हो ही गए हैं। तो द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, है ना, कि भाई इंटेंशंस अच्छी हैं, पर अगर आप करेंगे कुछ नहीं तो द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। 3 साल में अब हम इस स्टेज पे आए हैं कि कमेटियों पे कमेटियां बनती जा रही। एक कमेटी बनती है, फिर आगे 4 कमेटी बनाती है, फिर आगे 4 कमेटी बनती है। और ये जसपाल भट्टी जी अपने कॉमिक उनमें कहा करते थे कि आज की मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही, आज हमने एक नई कमेटी बना दी। एक नई कमेटी बना दी। तो चलिए, विष्णु पुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है। वो कहते हैं कि जितनी भूमियां हैं वो सब भोग की भूमियां हैं, भोग की। केवल भारत की भूमि योग की भूमि है। इसीलिए देवता लोग भी अनुष्ठान करते हैं कि हम भारत में मनुष्य रूप में जन्म लें, क्योंकि ये योग की भूमि है। अब ये तो फैक्ट है, देखा जाए तो जितने महात्मा, जितने ग्रेट आध्यात्मिक सोल्स इंडिया में, भारत में हुए हैं पुराने जमाने, अब ऋग्वेद के ऋषियों से शुरू करिए, कितना ज्ञान, कितने ज्ञानी लोग, कितने कितने। हमारी तो इवन मतलब बेटियां, कान्य कुब्जा एक टर्म है, कन्नौज की बेटियां इतना ज्ञान में रहती थी कि उनको कुबड़ी हो जाती थी, क्योंकि बेंड करके पढ़ते पढ़ते। कान्य कुब्जा मतलब इतना ज्ञान की परंपरा। और ज्ञान जो है वो ऋषित्व या सन्यास के बगैर नहीं मिलता। ये वेस्टर्न नोशन है कि जितना जितना लेक्चरर से प्रोफेसर बनता जाता है, उतनी ही उसकी विस्की की कीमत बढ़ती जाती है। वो शुरू करता है देसी से और पहुंच जाता है स्कॉच पे, जब वो बड़ा प्रोफेसर बन जाता है। पर हमारे यहाँ जब माधवाचार्य ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं तो ज्ञान अर्जन करना चाहता हूं, तो माँ ने कहा तुझे सन्यास लेना पड़ेगा, ज्ञान अगर अर्जन करना है तो सन्यास। और आदि शंकराचार्य तो आप जानते ही हैं कि आदि शंकराचार्य ने 5 साल में सारा वैदिक वांग्मय उन्होंने ग्रहण कर लिया था, 5 साल की आयु। कालड़ी छोटा सा गांव है केरला में जहां वो थे, और पे के अब अब मैं निकलूंगा देश में देशाटन करूंगा, और मैं बहुत चर्चाएं करूंगा जहां ज्ञानी मिलेंगे उनके साथ। तो माँ ने उसे कहा कि बेटा तू ही मेरा है, मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो वो सुना होगा, वो एक किंवदंती है। पर हमारे यहाँ किंवदंतियां जो हैं उनका स्टेटस हिस्टोरिकल फैक्ट से ज्यादा है, बिकॉज हम मौखिक परंपरा के लोग हैं। और हम मौखिक, हमारा ज्ञान की जो विधा है वो भी मौखिक है। हमारे महाभारत जैसे एपिक जो है वो भी छंदोबद्ध है, रामायण भी छंदोबद्ध है, क्योंकि हमारा जो इतना जो साहित्य है इतना महान, वो पढ़ने का नहीं है, वो परफॉर्मेंस का और सुनने का है। वेद, लोग सोचते हैं कि वेद हमें पढ़ने नहीं देते, बहुत लोग कहते हैं ना वेद पढ़ने नहीं देते। आजकल तो 200 रुपए में सारे ट्रांसलेशन में मिल जाते हैं, आप पढ़ लो।
अब तो ब्राह्मण भी नहीं पढ़ते, क्योंकि वेदों को पढ़ने के लिए 14 विद्याओं का ज्ञान चाहिए, 6 तो वेदांग चाहिए। आप पहले अपने को इतना इतने डिसिप्लिन में एक्सेलेंस होगी, तब जाके आपको वेद की ऋचा समझ आएगी। तो इसलिए अब तो ब्राह्मण भी नहीं पढ़ता। पर ये जो इतना इस साहित्य है, जो इतना जो ये जो महान साहित्य है, इसकी सारी रचना मौखिक रूप से हुई, मौखिक मौखिक ही हुई। और ये मौखिक इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ लिपियां नहीं थी। अशोका की इंस्क्रिप्शंस जो हैं 5 लिपियों में है, खरोष्टी से लेके पुरातन द्रविड़ तक 5 लिपियों में। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में 7 बार लिपि शब्द का प्रयोग है। मौखिक परंपरा एक दूसरी प्रकार की ज्ञान परंपरा है, जिसमें ज्ञान का सृजन, ज्ञान का संजोना, ज्ञान का बांचना और ज्ञान को अगली अगली पीढ़ी में देना सब मौखिक रूप से होता था, जिसको हम लोग आजकल गुरु शिष्य परंपरा, वो क्या समझता कोई नहीं है कि गुरु शिष्य परंपरा। क्योंकि हमारा एजुकेशन, हमारी जो भारत की जो दर्शन है शिक्षा का, उसमें गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने तो गुरु को, वैसे तो गुरु शब्द का एक और अर्थ निकाल लिया ना हमने, कह रहे उससे बच के रहना, बड़ा गुरु है ना, चलो गुरु घंटाल, इस तरह कहने लग गए। पर गुरु जो हमारी परंपरा के जो गुरु थे, जैसे शौनक है, वो शौनक, तो शौनक ऋषि यहाँ हमारे दिल्ली से लखनऊ जाइए तो नैमिषारण्य आता है। नैमिषारण्य में शौनक ऋषि का अपने जमाने का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था उनका, 10,000 उनके पास थे। और वो कुलपति थे। उस वक्त जो कुलपति होते थे, वो अपने विद्यार्थियों का सारा भार वो संभालते थे, उनका खाना पीना खर्चा सब कुछ। और वो सरकार से एक पैसा नहीं लेते, उनको समाज सपोर्ट करता था। और राजा जब उस ऋषि के पास आता था, तो अपने अपने चप्पल और अपना मुकुट बाहर उतार के नंगे पैर आके पहले साष्टांग होके गुरु के पैर छूता था। ये एक एक दूसरी दुनिया थी। उस दुनिया में ही इतने ज्ञान का सृजन हुआ। मैं कैटेगोरिकली ये कहता हूं कि भारत के ज्ञान ग्रंथ, संस्कृत, पाली, प्राकृत और ओल्ड तमिल के जो भारत के जो ज्ञान ग्रंथों की जो राशि है, वो दुनिया के सारी भाषाओं के ज्ञान ग्रंथ इकट्ठे कर लीजिए, उससे ज्यादा है हमारे देश के ज्ञान ग्रंथों के। कि हम भूले बैठे हैं हनुमान जी की तरह अपनी ताकत, वो अलग बात है। पर हमारे, वी हैव द लार्जेस्ट बॉडी of intellectual texts, and they exist, and they exist. If any evidence is needed, our libraries, our universities, Taxila was burnt in 8th century, Nalanda was burnt in 13th century, Vallabhi was burnt in 9th century, Vikramshila was burnt in 14th. 21 universities were there in Bihar alone when Nalanda was burnt. They were burnt. Nalanda library was a 9-story library of manuscripts. It was burnt for 6 months. तो इसके बावजूद इस वक्त अभी तक हमारे पास जो मिल गए हैं 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। 10 million manuscripts. Imagine how learned this civilization is. And we have not discovered all, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट मिशन की तरफ से जब हम लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट्स की सर्च करवानी शुरू करी गांव में, तो हमारे स्कॉलर्स जाते थे गांव में, रिसर्चर्स, तो गांव पंडित जी के पास जाते थे। पंडित जी कहते थे मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कोई पांडुलिपि नहीं। पर उस गांव के दूसरे लोग कहते थे कि पंडित जी के पास बहुत पांडुलिपि है। पर उस वक्त जो पंडित, आज भी जो गांव में पंडित हैं, पंडित, उनके लिए पांडुलिपि की कीमत सोने से ज्यादा है। वो सोना दे देंगे आप,
पर पांडुलिपि का आपको नहीं देंगे और हाथ नहीं लगाने देते थे। जब फिर हमने उनको समझाया, ट्रेन किया रिसर्चर्स को कि आप उनको जाके हाथ जोड़ के कहिए कि हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, आप उसको खोल के रखिए, हम सिर्फ उसकी कैमरे से माइक्रोफिश फिल्म बनाएंगे, हम ले जाएंगे नहीं। ये गारंटी देने के बाद फिर वो बड़े रिलक्टेंटली ऐसे संभाल के रखा हुआ वो ग्रंथों को निकालते थे। तो बहुत अभी भी पड़े हैं। पर देखिए, वो तो पंडित परंपरा थी जिसके बारे में कार्ल मार्क्स कहता है कि जब अरब इन्वेजन शुरू हुए, इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुए तो ईरान ईरान की गहराई कितनी है? ईरान की 3000 किलोमीटर की गहराई है। और ईरान, द ग्रेट पर्शियंस, द पर्शियन एम्पायर, Tiberius and Cyrus and all that great Iranians, they were defeated and converted in 30 years. 30 साल में the invading Arab armies defeated and converted Iran in 30 years. कार्ल मार्क्स का मैं बता रहा हूँ, उसकी एक किताब है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो कार्ल मार्क्स के आजकल हम बताना पड़ता है ना कि ये आरएसएस वाला आदमी नहीं कह रहा, ये कार्ल मार्क्स कह रहा है कि 30 साल में ईरान को कॉन्कर करके कन्वर्ट कर दिया। देन ही आस्क्स, हाउ इज इट दैट द हिंदूज पुट अप सच ए डेडली रेजिस्टेंस कि उन्होंने कहा कि दैट इवन आफ्टर 1000 years they were unable to, at no point of time, he notes, at no point of time the entire India was under their control, and in 1000 years also they were not able to convert the people in spite of the most destructive vandalism. Will Durant, writing about the civilizational history, 10th chapter, the Mohammedan conquest of India is the most violent chapter of human history. In spite of that, they did not succeed. The strength, he says, how? Why? And you know what he says? It is because of the Pandit Parampara. Every village had a Pandit. And that Pandit was a social role model. He was a repository of knowledge. He was the teacher. He was the doctor. Ayurveda. He was the psychiatrist. He was the general consultant. And he was also the Purohit, जो birth से लेके death तक की ceremonies भी करता था. It is these Pandits whom people followed with full trust. They organized the resistance. इसलिए sir, whenever the invading armies defeated a town, captured a town, they did a few things in this order. They destroyed the temple and replaced it by their own structure. And because the Brahmins used to live around the temples, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं उनको उस समय तक, अभी तक उनको ना एग्रीकल्चर कर सकते थे, ना व्यवसाय कर सकते थे, ना कोई धंधा कर, उनका दो ही काम थे, ज्ञान और पुरोहितगिरी। ज्ञान का अर्जन, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो है। तो they used to stay around the temple. आप कहीं भी जाइए, गुजरात में जाइए, बड़े बड़े मंदिरों के ruins पड़े हैं, तो चारों तरफ ब्राह्मण रहते, उनका स्लॉटर करते। They used to slaughter 5-year-old boys and above, and carry away the girls and carry the middle-aged people as prisoners to Central Asia via Hindu Kush mountains. Hindu Kush means killer of Hindus. Hindu Kush mountains, they used to take them. ताशकंद में आज भी आपको
रिकॉर्ड मिलते हैं कि हिंदू मेल 40-year-old, हिंदू फीमेल 50-year-old कितने में बिकती थी या बिकता था. In spite of all that, we have not succumbed. We are surviving. Not only surviving, we are bouncing back. We are in the process of bouncing back. तो देखिए, भोग भूमियां बहुत थी. योग भूमि. हाँ जी, हाँ जी सर. हेलो. This this is because one always thinks कि कोई बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही होगी. कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता लाइफ में, बट इतनी अकल नहीं आती ना कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है. एनीवेज, सब योग भूमि 75 years से 76 years से our governments have tried to convert India from yog to bhog, and that is why our our education our education is totally dedicated to producing rich, successful people, or people who can be good clerks. Good clerks and rich and successful people. That's a package philosophy and all these things. Our education is neither democratic नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है. You can talk in the NEP, the word access बहुत यूज हुआ है. Give equal access and quality, multidisciplinarity, interdisciplinarity. आप मल्टी इंटरडिसिप्लिनैरिटी ये हमको तो ज्यादा समझ नहीं आती है. हम तो JNU में कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया में है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है. और क्योंकि NEP लिखने में कुछ अमेरिकन इंडियन थे, तो उन्होंने सोचा इंडिया में तो सिर्फ संस्कृत यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी ऐसे होती हैं, तो यूनिवर्सिटियों को मल्टी डिसिप्लिनर बनाना है. एनीवेज, बहुत और चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, ऐसी बात नहीं है. बट ये बैलेंस तो करना पड़ता है ना, कह के अच्छी चीजें भी हैं. बट देन the effort to transform, you often heard about कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं बदल सकते, है ना, जुडिशरी कहती है ना. पर आपने इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया. आपने इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी in trying to de-Hinduize the country. I'm sorry, I'm being very frank, and I always speak like this. This is not the first time that I am saying this. I've been saying this in JNU also, that there has been an effort. Constitution क्या है? Constitution एक क्या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सिडनी और बीट्रिस वेब की इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट आइडियाज और इस तरह का, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन मिला मिलू के एक ग्रंथ बनाया 1950 में, है ना, 50 में. और इसकी सैंक्टिटी इतनी है कि अगर आप इसको क्रिटिसाइज करोगे तो आप पे केस होगा. पर आप अगर भगवत गीता को गाली दे दो, कुरान को गाली दे दो या किसी को, तो आप बड़ा वो कुरान तो नहीं, कुरान और बाइबल को तो आप गाली नहीं दे सकते, पर हिंदू ग्रंथ किसी को भी गाली दे दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसकी सैंक्टिटी नहीं है. पर कोर्ट ऑफ लॉ में आप, जो अक्यूज्ड है वो कहता है मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं मैं सच बोलूंगा. वहां आप क्यों नहीं कहते कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के कहता हूं मैं सच बोलूंगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी कहां सच बोलता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. हमारा समाज देश का ड्यूटी ओरिएंटेड समाज है. फैमिली, बिकॉज वी हैव सर्वाइव्ड द हिंदू सिविलाइजेशन. हिंदू नहीं कहना चाहिए, सनातन, क्योंकि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख ये चारों एक ही है, चारों का सिस्टम एक ही है. आपको मैं एक अजीब बात बोलूं, ये चारों जो है गॉडलेस रिलीजन है.
हमारे यहाँ गॉड नहीं है विद ए कैपिटल जी। भगवान राम, आपको पता है वो कब पैदा हुए? जानते हैं ना? आपको पता है उनकी कब मृत्यु हुई? और आप जानते हैं कि उन्होंने जल समाधि ली थी। ही आजकल की भाषा में ही कमिटेड सुइसाइड। कैसे भगवान है? 14 साल वनवास में, आज तिलक होना था, वनवास भेज दिया, जंगलों में घूमते रहे। लक्ष्मण जैसे भाई का त्याग करना पड़ा, सीता का त्याग किया। और भगवान कृष्ण, भगवान है ना, भगवान कृष्ण, ही डाइड एन एनिमल डेथ, ही वाज शॉट लाइक ए डियर, शॉट लाइक ए डियर। तो अ, हमारे संस्कृति में, हमारे दर्शन में गॉड विद ए कैपिटल जी नहीं है, वी डोंट हैव। हमारे छोटे छोटी जी वाले देवी देवता बहुत हैं। देवी देवता, यास्क की एक किताब है 9th सेंचुरी बीसी। यास्क बड़ा ग्रेट स्कॉलर था, गुजराती था। सारे गुजराती ग्रेट नहीं होते, पर कुछ काफी ग्रेट होते हैं। तो गुजराती स्कॉलर था वो, नगर पारकर का था, नगर पारकर। और फिर कहते ओम परस्कराय नमः, परस्कराय नमः। ग्रेट स्कॉलर, एब्सोल्युटली ग्रेट स्कॉलर, unequaled, you know. His book Nirukta, Nirukta, he is the first one to make a full complete dictionary, निघंटू। और तेलुगु में आजकल भी डिक्शनरी को निघंटू कहते हैं, यू नो, निघंटू एंड देन निरुक्त। और उसने कहा है कि ये जो 33 कोटि हैं देवता, जो कोटि को हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे स्कॉलर्स ने कर दिया 33 करोड़। 33 करोड़ नहीं, कोटि, कैटेगरी, 33 categories of gods. They're categories of powers and functions. Powers and functions. एक फोर्स है, एक फोर्स है इस यूनिवर्स में, एक एनर्जी प्रिंसिपल है जिसके 33 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, जिनको हम नाम देते हैं और देवी देवता बनाते हैं। कोई ज्ञान की देवी, कोई डेथ की, कोई धन की, है ना। आप तो वैसे फेमिनिस्ट थ्योरी पढ़ाते हैं लोग, पर हिंदुस्तान में तो फेमिनिस्ट थ्योरी चल ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए, अगर किसी आदमी को धन चाहिए तो वो सरस्वती के पास जाए ना, उसके बाद लक्ष्मी के पास जाएगा। उसको ताकत चाहिए तो वो दुर्गा के पास जाएगा। अगर ज्ञान चाहिए तो सरस्वती के पास जाएगा। हाँ? तो आदमी को लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो यहाँ कहाँ पैट्रीमनी और मेल शोविनिज्म कहाँ पे है? वो बेचारे भगवान शिव को, भोले बाबा को भी ठंड में बैठा दिया और कपड़े भी पूरे नहीं पहनाए, है ना। और इधर वो अपने विष्णु जी हैं, वो समुद्र के अंदर बीच में कश्ती में बैठे हैं, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, धीरे धीरे, क्योंकि उसमें बैठे रहते हैं। इफ यू कंपेयर द फिजिक ऑफ शिव एंड विष्णु, you can see that Vishnu suffers from lack of exercise, you see, but Shiva is very like a yogi, you know, he's like a yogi. तो देखिए, the whole, I don't know why I come to this point, but then the what was I saying? भूल गया मैं। अब ये क्लास में भी भूल जाता था, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ। तो चलता है ना, तो बच्चा कोई ना कोई मुझे याद दिलाता था कि सर आप इसकी बात कर रहे थे। आप यहाँ इंडिया में फेमिनिज्म नहीं चल सकता। हाँ, फेमिनिज्म, वो या तो मैंने बता दिया कि नहीं चल सकता। हमारी भाषाएं देखिए, इसके आगे आप भगवत गीता का 16वां चैप्टर देखिए, जिसमें मूल्य हैं, वैल्यूज, जितने अच्छे मूल्य हैं वो सारे फेमिनिन जेंडर में हैं। क्षमा, धृति, और जितने गलत हैं, अहंकार, क्रोध, वो सारे मैस्कुलिन जेंडर है ना। अच्छा, और हमारे कपड़े जो हैं, पैंट वो फेमिनिन है, और उनका ब्लाउज जो है वो मैस्कुलिन है ना। पेटीकोट भी मैस्कुलिन है। तो हमारी तो भाषा भी एंटी मेल है, एंटी मेल है। और हमारा दर्शन तो है ही एंटी मेल। बिकॉज नाउ टू बी सीरियस, लेट मी टेल यू, इंडियन सोसाइटी इज ए मैट्रिलिनियल सोसाइटी, हमारी पैट्रिलिनियल नहीं है। ऑल्दो आपको कुछ तो एक्चुअली अभी भी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, you'll be surprised to know that in the tribal communities, the property descends to the youngest daughter.
प्रॉपर्टी गोज टू द यंगेस्ट डॉटर। तो कुछ तो एक्चुअली मैट्रिलिनियल है, बट इंडियन सोसाइटी एज ए होल साइकोलॉजिकली इज मैट्रिलिनियल। एक मैं और आपको फैक्ट बताता हूं, शायद आपको पता होगा कि तो हिंदू जॉइंट फैमिली इज ए लीगल कॉन्सेप्ट। हिंदू जॉइंट फैमिली, उसमें एक कॉन्सेप्ट है कर्ता। हिंदू जॉइंट फैमिली का कर्ता मतलब वन हु हैज द अथॉरिटी टू टेक द फाइनल डिसीजन। डू यू नो हु इज द कर्ता इन द हिंदू जॉइंट फैमिली? नहीं जानते आप? द एल्डेस्ट लिविंग वुमन, शी मे बी ए विडो, but she is the karta. The eldest living woman of the family is the karta of a Hindu joint family. अभी भी आप नहीं मानेंगे कि वी आर ए मैट्रिलिनियल सोसाइटी। हरियाणा में तो बूढ़ी बूढ़ी औरतें 97 साल 98, जिनको लोग कहते हैं कि माता तेरा नंबर नहीं लगा अभी, वो कहती है बेटा मेरी तो फाइल खो गई ऊपर। और वो ताई कहते हैं उसे, ताई। ताई को पूछे बगैर ना कोई रिश्ता कर सकते हो आप, ना कोई जमीन बेच सकते हो, ना कोई मकान खरीद सकते हो। ताई ताई इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। आप जाके देख लीजिए गांव में। अब और हमको जो जो हमें जो शहरों में जो नेशनल लॉ स्कूल जो पढ़ाते हैं, वो तो दूसरी चीजें पढ़ाते हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि एसिमेट्री है। कैसे एसिमेट्री? देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। You see, our society is duty oriented, duty centered. कोई लड़का, बड़ा लड़का घर का, मिडिल क्लास फैमिली का, कोई बड़ा, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली का ही बड़ा लड़का था, हूं मतलब, और था इसलिए कह रहा हूं कि मेरे 2 भाई बहन चले गए अब, तो मैं एल्डेस्ट था। तो देयर वाज नो डाउट इन माय माइंड, नो डाउट, नो डाउट इन माय माइंड व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ। मेरे को कोई एलियनेशन या छात्र की एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है। मुझे पक्का पता था मुझे क्या करना है। भाई बहन को पढ़ाना है, बहनों की शादी करानी है, और फिर बाद में माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो वो मेरे पास रहेंगे, वो एक एक करके जाएंगे। और इसमें मैं कोई साइकेट्रिक केस नहीं बन गया। आई हैव नॉट बिकम ए न्यूरोटिक, इनफैक्ट आई हैव बिकम एन इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग बाय डूइंग दिस। अगर कोई बच्चा घर जाके कहे कि मैं अब मेरे आई एम नाउ अर्निंग 3 लाख रुपीस and I am going to buy an Audi, on EMI of 80,000 a month, and if the mother says कि तो तेरा भाई तो मेडिकल करना चाहता है, उसके पैसे कौन देगा? तो डू यू थिंक एन इंडियन एल्डर सन विल से इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं कमाता हूं, मैं अपने आप पे खर्चूंगा, मैं किसी को क्यों दूं? तो माँ कहेगी तो अपना फर्ज समझ, फर्ज, तुम्हारा फर्ज क्या है? कभी कोई माँ कहती है कि तुम्हारा हक क्या है? बताइए। इस समाज में, हमारे समाज में हक का समाज नहीं है, फर्ज का समाज है, राइट्स का समाज नहीं है। यू सी, राइट्स आर कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड बिकॉज एवरीवन वर्क्स फॉर वन्स ओन राइट, बट ड्यूटी इज अदर डायरेक्टेड, ड्यूटी इज डन फॉर अदर्स, सो ड्यूटी प्रमोट्स हार्मनी। हमारा समाज तो कर्तव्य परक है, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स लिखता है। और जो ड्यूटीज है ना, डायरेक्टिव पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी में है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो रहने भी दो, कोई नुकसान नहीं है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें जो है ड्यूटीज जो हैं, पढ़ के, वो ड्यूटीज इंडिविजुअल नहीं है। वो ड्यूटीज यही है, गरीबों की मदद करो, और गार्डन बनाओ अच्छे अच्छे, पार्क बनाइए, और पेड़ों को लगाइए। दीज आर नॉट ड्यूटीज इन दी वे वी। हमारे ड्यूटी का मतलब ये है कि अगर तुम बड़े हो, तुम पढ़ लिख गए हो, माँ बाप बूढ़े हो गए, फादर की इनकम नहीं है, फादर के पास नहीं है पैसे, तो भाई बहनों को तूने पढ़ाना है, बहनों की शादी तूने करनी है। हमारे महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है कि जो जो मनुष्य, मैन, जो अपनी बेटी की शादी नहीं करता ठीक तरह से, और जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, उसको तो निश्चित नरक में जाना ही जाना है। ये है ड्यूटी, ड्यूटी ओरिएंटेड समाज। बट योर कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट्स ओरिएंटेड।
तो एसिमेट्रिकल हो गया ना। तो बनाया किसने? ये अंग्रेजी शिक्षा जिन्होंने पाई है वही तो कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर जी ने नहीं लिखा था। सब कहते हैं अंबेडकर रोड द वे, ही डिडंट। अंबेडकर वाज द हेड ऑफ द एडिटोरियल कमिटी। ये तो बाकी लोगों ने सबने इधर उधर से इकट्ठे कुट्ठे करके बाद में उसको बनाने के लिए, रीराइट करने के लिए किया गया। एनीवेज, अंबेडकर जी ने बनाया होता तो यू नो दैट सर, दैट अंबेडकर submitted a petition to the Constituent Assembly, signed by 50 members of the Constituent Assembly. The second signatory was a Muslim, Ambedkar ji ke baad. You know what was the petition? That Sanskrit should be made the official language of India. Ambedkar ji submitted a petition that Sanskrit should be made the official language of India. और नेहरू को तो हिंदी भी पसंद नहीं थी, तो उसने संस्कृत तो छोड़ो, वो हिंदी भी बड़ी मुश्किल से राजेंद्र प्रसाद वगैरह ने जोर जार लगा के किसी तरह लगा दी, अदरवाइज वो भी नहीं आनी थी। एनीवेज, तो यू सी द asymmetries. Our education, now let me tell you, it is not democratic. It's not democratic because if you don't know English and if you don't have money, you cannot go to IIMs or to IITs or to specialized institute of designs. आप नहीं जा सकते. So it's not democratic. लोकतांत्रिक नहीं है. It is not federal. Up to 1971, education was a state subject. आपको पता है? 71 तक education was a state subject. अब हमारा देश इतना विशाल है, it's like यूरोप. अब आप अगर फ्रांसीसियों को कहो कि तुम जर्मन पढ़ो, तुम जर्मन फिलोसफर पढ़ो, वो तो नहीं पढ़ेंगे. आप जर्मनी वालों को कहो कि आप अंग्रेजों की किताबें पढ़ो, साहित्य की बात ये मैं कह रहा, ज्ञान ग्रंथ कह रहा हूं, नहीं पढ़ेंगे. हर एक रीजन का, एवरी रीजन हैज इट्स ओन wealth, its own wealth of literature, wealth of resources, its own character, its own. आप ट्रेवल करिए देश में, by food you find how everything is. यहाँ पे तो कहते हैं ना कि 2 कोस में भाषा है, 4 कोस में पानी, और यहाँ तो एक गांव से दूसरे गांव में समोसा बदल जाता है. इतनी वैरायटी है हमारे यहाँ, इतनी वैरायटी. But then in America you travel for 400 kilometers, तो उसके इधर भी वही है कोक इन क्रश्ड आइस और बर्गर, और उधर भी वही है कोक इन क्रश्ड आइस विद बर्गर. और यहाँ पे आप एक से आप पैदल चलिए, आप गाँव दूसरे गाँव तीसरे गाँव, हर एक की खाना भी अलग, पानी भी अलग, ड्रेस भी अलग, बोलचाल, एवरीथिंग इज डिफरेंट. एंड येट वी आर वन बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस, चैतन्य की ज्ञान जनित एकात्मता इस देश में है. चैतन्य की ज्ञान जनित एकात्मता, क्योंकि हमारी ज्ञान केंद्रित सिविलाइजेशन रही है, और वो ज्ञान जो है हमेशा जीवित रहा है. क्योंकि जब 11वीं शताब्दी में उस पर आघात शुरू हुआ, तो बड़े बड़े दिमाग जो थे उन्होंने टीकाएं, उन्होंने अनुवाद करने शुरू किए, और उन्होंने लोक भाषा में अनुवाद किए, और लोक भाषा में दार्शनिक ग्रंथों के ऊपर भाषण दिए. रामानुजाचार्य जी, अब ये भी एक ट्रेजेडी है हमारी कि हमको टूया सा अमेरिकन नॉवेलिस्ट का नाम तो याद रहता है. आधे से ज्यादा मैं कहता हूँ पूछ लीजिए कि हेमचंद्राचार्य कौन था. सब कहते हैं जी अद्वैत बहुत बड़ा दर्शन था, तो उन्हें पूछिए अद्वैत के जो 5 बड़े थिंकर थे कौन थे. वो तो छोड़िए, 5 पांडवों के नाम भी नहीं आते लोगों को. वो कहते हैं एक भीम था, एक बड़ा था, एक छोटा था, 2 के नाम भूल गए. ऐसे होता है. पर 5 अगर अद्वैत के थिंकर, great thought. Today it is the unofficial philosophy of India, non-dualism, Advaita. और Adi Shankar, Ramanujacharya, Madhvacharya, you see, then Nimbarkacharya, then Vallabhacharya. 5 great thinkers जिन्होंने उसको इन्फ्लेक्ट किया और उस थॉट को इवॉल्व किया है. You see, ask anybody, ask professor of philosophy in India कि वो क्या है, उन्होंने क्या किया, किताब कौन सी लिखी, ग्रंथ कौन सा है, कुछ नहीं पता. पर अंग्रेजी में हारकोर्ट ब्रेस से लिखी छपी हुई किताब
ऑफ ए थर्ड रेट ह्यूमन माइंड, उसका वो सब उनको हिसाब किताब हमको रहता है. सो अवर शिक्षा डेमोक्रेटिक नहीं है, फेडरल भी नहीं है, क्योंकि आपने 71 में इसे उसका बना दिया जॉइंट लिस्ट का, कोई सेंटर एंड स्टेट दोनों का कंबाइंड होगा, पर सेंटर नेचुरली सेंटर का ज्यादा. अब यू हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन ऑल स्टेट्स. व्हाई डू यू नीड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन ऑल स्टेट्स? बिकॉज द फियर you see that on one side we are very proud of our diversity. I don't like that word. I don't say unity in diversity. I say diversity in unity. There is a basic unity in which there is diversity, and it's a richness. We are very proud के हमारी इतनी भाषाएं हैं, इतने लोग हैं, पर हम डरते हैं उससे. हम शिक्षा का हमारा मूल कारण, I will conclude with that. I know I have taken a lot of time, but I will come to this, that let me finish what's wrong with this. Second is not federal. Federal का क्या मतलब है? किताबें एनसीईआरटी बनाती है, एनसीईआरटी किताबें बनाती है, और वो एम क्या है कि भी देखो नेशनल पर्सपेक्टिव. They think there is an opposition between what you can think in abstract about the country and what people of Madhya Pradesh think. उनमें कोई बैर है आपस में, कि जब एब्स्ट्रैक्ट में देश की भलाई का जो सोचते हो और जो मध्य प्रदेश के लोग सोचते हैं देश की भलाई का, उसमें बड़ा भेद है. बिल्कुल भेद नहीं है. जब आप अंग्रेजी में सोचते हो तो भेद है. अंग्रेजी में जब आप सोचते हो तो सेंटर में अलग है और रीजन में अलग है, क्योंकि सेंटर वो जो इंग्लिश लैंग्वेज जो कल्चर जो वैल्यूज लाती है, वो तो इन एनी केस एलियन है. You see, I don't have time, but I will like to tell you some of the things what this education has done to our young people. See, तो ये फेडरल नहीं है. अब फेडरल होगा तो मध्य प्रदेश के जो यूनिवर्सिटियों में आप पढ़ाएंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे, जो किताबें हैं वो आपके मध्य प्रदेश के लोग बनाएंगे. वो अपनी उनकी जो जनजाति है, आपके जो फोक लिटरेचर है, फोक आर्ट्स हैं, जो आपके यहाँ इतिहास रहा है, युद्ध रहे हैं, जो आप भी वही पढ़ते हो जी, उसने महमूद गजनी ने सोमनाथ तोड़ दिया, पर आप ये नहीं तोड़ते कि आपके चंदेल राजा थे, उन्होंने गजनी को हरा दिया. चंदेल राजा ने तो गजनी को हरा दिया. ये आप नहीं पढ़ते. आप भोजराज परमार का नहीं पढ़ते, जिसने इंडस नदी के किनारे जाके हराया. आप अकबर दी ग्रेट पढ़ते हो, अशोका दी ग्रेट पढ़ते हो, क्योंकि वो सेंटर में अगर आप अशोका का नाम लेंगे तो अकबर का नाम लेना जरूरी है, इसलिए आप वो अकबर ही पढ़ते हैं. यू सी, इट्स नॉट फेडरल. सो योर texts are not really close to the life of the people. Thirdly, it's not vernacular. आप अपनी भाषा में तो पढ़ाते ही नहीं, अपनी भाषा में नहीं पढ़ाते. Number 4, it is not Indian. Take the syllabus of an MA program in any subject. Look at the reading list. आपका अपना एक भी ग्रंथ किसी भी रीडिंग लिस्ट में नहीं है. आप श्री भाष्य पढ़ाते हो, आप ब्रह्मसूत्र पढ़ाते हो फिलोसफी में, आप हेमचंद्र आचार्य पढ़ाते हो व्याकरण में. कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में आपका एक भी ग्रंथ नहीं है, सारे अंग्रेजों के ग्रंथ हैं. और हम कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट हैं. इसलिए पंजाबी लोग तो, उनको अंग्रेजी कम आती है लकीली पंजाबियों को, क्योंकि बहुत देर से अंग्रेज पहुंचे ना. 1849 में सबसे पहले बंगाल में पहुंचे, सबसे ज्यादा अंग्रेजी बंगाल में ही आती है. उसके बाद मद्रास में पहुंचे, वहां भी बहुत अंग्रेजी आती है. अफगानिस्तान में पहुंचे नहीं थे, इसलिए उनको अंग्रेजी आती नहीं है ना, अफगानिस्तान वालों. तो उनकी जो भी कल्चर रही, दे वर ऑलवेज वॉरियर्स एंड दे आर स्टिल वॉरियर्स. अलेक्जेंडर के टाइम पे भी वो वॉरियर थे, अब भी वॉरियर है. तो ये दिस इज नॉट इंडियन. कंटेंट नहीं है, कंटेंट इंडियन है ही नहीं. पाणिनि की अष्टाध्यायी 7th century BC is the only grammar of a human language which is comprehensive, explicit
rule bound and algorithmic, and composed only in 32,000 syllables. Remarkable. इतनी सी है, 5 पैसे में मिलती थी जब मैं बीए में पढ़ता था. You see, but it is taught in NASA. NASA में पढ़ाते हैं साइंटिस्ट को to show how a domain of knowledge is analyzed. You see, and how that domain of knowledge needs intra categories and in a hierarchy. So as a modeling of knowledge, proto modeling of knowledge, NASA में पढ़ाते हैं. हमारे यहाँ linguistics, भाषा विज्ञान में भी नहीं पढ़ाते. So it is not Indian. So this is the education structure, and what it has done. My daughter says, Papa, you talk too much. So I think I will prove her right and conclude by telling you how 7 essentials of Indian civilization, 7 essentials, according to Anand Kumara Swami, have been negated by this education, our education. First is that the Indian culture, Indian people, ordinary Indians, they have a philosophy, a universal philosophic mind. Average Indian, poor, talk to a rickshaw wala. शाम को जब वो बैठेगा थोड़ा बहुत जो कमा के, और जब आराम से सर्दी है तो आग जला के बैठेगा, उसे पूछिए भैया इतनी मेहनत करते हो, हाँ इतनी मेहनत करते हो, और क्या है ये सारा जीवन का क्या अर्थ है, वो आपको ऐसा जवाब देगा दार्शनिक जो आपके अंग्रेजी के प्रोफेसर नहीं दे पाए. मैंने बहुत, I have traveled a lot in this country when I was young, which is about 100 years ago. But I used to travel to small places, sit down with people, listen to them. इतना ज्ञान पाया है उन लोगों से कि there is no accounting for that. No book can teach you what an ordinary Indian, if you ask him fundamental questions, he can. So, what is the philosophy? For example, every Indian believes कि जो दिखता है ये पूरा सच नहीं है. See? जो दिखता है ये अपीयरेंस है, ये सब माया है. कहते हैं ना, अरे भाई ये तो माया है. अब माया का पहले अर्थ था कि अपीयरेंस का, एक कंस्ट्रक्ट है. अब माया का दूसरा भी अर्थ है ना, वो भी ठीक है. ये सब माया है ना, पैसा है, मतलब सब पैसे का खेल है. Every Indian believes that what you see, the world, the reality that you claim is reality, is only a surface. It is an appearance. A European person will have to read philosophy for 10 years to reach this understanding that this world is an appearance. It doesn't exist in itself. मैंने ये पेन ऐसे किया, इस तरफ क्या लिखा हुआ है वो नहीं, ये इसका क्लिप कैसा है वो आपको नहीं दिख रहा, इसके अंदर क्या है वो नहीं दिख रहा, इसको खोल के इसके अंदर क्या वो नहीं दिख रहा. ये क्या है, ये कैसे बना, ये कौन सा स्टील है, किसने बनाया, कुछ भी नहीं जानते. Nothing. The reality, what we see, every Indian is aware. This is a philosophic bent of mind. और प्रतिभाषिक सत्ता, but the West operates with the sensory world. और वही हमारी शिक्षा में, एजुकेशन में, कोई आप कहने लगे अरे बेटा ये तो दिख रहा है, ये सच थोड़ा है, कोई कह के देखो किसी को, है ना, तो वो कहेगा लाइक डॉक्टर जॉनसन कि अगर तुम्हें ये जो बर्गर तुम खा रहे हो ये तुम्हें सच नहीं दिखता तो फेंक दो. मतलब दिस इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग of a philosophical question, you see. Second, very quickly I'll finish. Second value which is, you see, इसका पहले का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जो आर्ट्स हैं, सेक्स है,
मैरिज है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंस है, ये सारे धर्म से बाहर हैं। अगर आप मानते हैं वेस्ट में धर्म से बाहर हैं, ये सेक्युलर है। और ये सारी चीजें हमारे हमारे जो जो धार्मिक ज्ञान है जो हमारा, जिसमें ये आता है कि ये जगत मिथ्या है या जगत माया है, ये उसी का पार्ट है। इसलिए आपके खजुराहो के टेम्पल्स में एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कार्विंग्स हैं। और जो विदेशी आते हैं या हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जाते हैं, वो आंखें फाड़ के देखते हैं उनको, खजुराहो में या कोणार्क में। पर जो गांव का इंडियन जाता है, वो आंखें बंद करके ऐसे हाथ जोड़ता है उनके सामने। उसके लिए सेक्रेड और प्रोफेन में भेद नहीं है इंडिया में। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन। बट डज दिस एजुकेशन प्रोफेन, यहाँ तो बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन हो। ये सेक्रेड है बिकॉज फॉर अस एवरीथिंग इज सेक्रेड, ऑल लाइफ इज सेक्रेड, all life is sacred, isn't it? So this is, everything is sacred. Why is everything sacred? Because we don't have a God with a capital G who created this and he's standing outside और देख रहा है कि क्या कर रहे हो. That Abrahamic God is a constable. वो तो चलान काटता है इंसान के. You see, he is a constable. हमारा जो ब्रह्मन है वो इमानेंट है, एनर्जी प्रिंसिपल है. And the whole universe is an energized matter in which forms arise and forms collapse, like wave, bubble, and froth in water. They go back and collapse. Finish हो जाता है, isn't it? So this sanctity of all life is a part of the Indian mind. इसलिए जर्नी लोग नंगे पैर चलते हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के चलते हैं. Sanctity है. ये भी these are not values which our education teaches. अरे क्या है ऐसी नंगे पैर चलते हैं, ये क्या है भाई, इसमें क्या है, नंगे पैर चलने में क्या है, ये बांध को तोड़ने से क्या है. वो कहते हैं वेजिटेरियनिज्म क्या होती है, अरे ये जो बैंगन है इसमें भी तो लाइफ है. यू नो दोस काइंड्स ऑफ एब्सर्ड रिडक्शन ऑफ लॉजिक, एब्सर्ड रिडक्शन ऑफ लॉजिक इज यूज्ड. एंड सर्टेन religious toleration. Why do Hindus have such tolerance even when their gods are abused? Why do they have respect for all ekam satya vipra baudha vadanti? Why? Because we know, we have been taught by our knowledge texts, from knowledge tradition, that every religion is a human mapping, a finite mapping on the infinite. The reality is infinite, universe is infinite. उसके ऊपर एक फाइनाइट ह्यूमन माइंड ने एक सिस्टम क्रिएट किया है. मेरा भी फाइनाइट ह्यूमन माइंड है, तो मैं हिंदू हूं, ठीक है. जो मुस्लिम है, जो सिख है, जो क्रिश्चियन है, उसने भी अपनी फाइनाइट मैपिंग की है. So we tolerate ekam satya vipra bodha vadanti. Nobody else does. We are the only ones. Nobody else does. Then etiquette. This is very important. The language of an ordinary non-literate. I'm not saying illiterate. You see, UNESCO का जो non-literate Indian है, he is a highly educated Indian. non-literate according to UNESCO, लिखना पढ़ना नहीं आता. नो, लिखना पढ़ना बहुत बड़ी वर्चू नहीं है. ये जो वर्ल्ड वार्स लड़े थे जनरल्स और ये वो सारे, ये क्या नॉन लिटरेट थे? ये तो बड़े हाईली एजुकेटेड लोग थे, गैटे पढ़ते थे और शैंपेन पीते थे, हाँ, और कई भाषाएं जानते थे, बड़े लर्नेड लोग थे. तो लर्नेड लोगों ने तो सारी वायलेंस की है. जो आदिवासी है जिसको पढ़ना नहीं आता, वो तो पेड़ नहीं काटता, वो तो नहीं पेड़ काटता. पेड़ तो पढ़े लिखे लोग ही काटते हैं ना. तो इसलिए एक ओवर रोमांटिसाइज्ड ये सोचना. बट एवरी ऑर्डिनरी इंडियन who has not been polluted by this education, his language is extremely civilized, extremely polite.
This is an observation of foreigners. Antiquated, civilized. He is a product of an ancient civilization. और वो इतने, आप किसी का हमने बात करेंगे, ऐसा ऐसा शब्द यूज करते हैं जो आपको पता भी नहीं। एक बार हरियाणा में हम जा रहे थे, तो पुल पे जैम था, तो वी वांटेड टू आस्क, आई वाज ड्राइविंग, आई वांटेड टू आस्क कि कोई और रास्ता है। कि एक फज्जन से 55-56 साल के, उनको मैंने कहा भाई साहब वो तो जैम है, कोई और रास्ता है? बोले जी मैं तो अनभिज्ञ हूँ। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, ही वाज यूजिंग द वर्ड अनभिज्ञ। मैं तो जी अनभिज्ञ हूँ, पूछ के बताता। एंड आई कांट टेल यू हाउ, when as a young person I went to a village, a day before I was to reach, the old man, the वो जो होते हैं उनके पंचायत के जो हैं, उनको मैंने कहा कि जी मैंने तो कल आना था, पर मेरा काम निपट गया, मैं आज ही एक दिन पहले आ गया। तो वो बोले बेटे तूने तो कल आना था, पर हमारा भाग्य भी तो जोर मारेगा। हमारे भाग्य, कोई जवाब, कोई शहरी होता तो कहता अरे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा आज आ गए, कोई बात नहीं। See that kind of thing, you see, this is civilization. Adequate, quick finish. Then fifth, we have very different philosophy of education. It is a teacher-centered, highly, the guru is highly respected and central. As I said, Rishi Shonak. Rishi Shonak these days has become Rishi Sunak and has become the Prime Minister of England. But he is basically Rishi Shonak. But because he was born in Punjab, Gujranwala, और पंजाबियों को संस्कृत बोलनी नहीं आती, so his father called him Sunak. But he is Shonak, ऋषि शौनक, उनका जिनका आश्रम है यहाँ। तो एक तो ये, then memorizing great literature is a part of our education. आपको पनवाड़ी जो है रामचरितमानस के दोहे सुना देगा। आपको टैगोर के पोएम्स जो हैं, जो नाव चलाता है ना नदी में, यूनेस्को का नॉन लिटरेट, वो आपको टैगोर की कविताएं सुना देगा। इट्स पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। यू आर सपोज, अनलेस आजकल क्या है कि रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, है ना, रट्टाफिकेशन, क्रैमिंग नहीं। वी विल मेक द स्टूडेंट्स थिंक, बट दे विल थिंक अबाउट व्हाट? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो ह्यूमन बीइंग को तो मेमोरी नहीं चाहिए, बट व्हेन यू गो टू बाई ए कंप्यूटर, इसकी मेमोरी कितनी है ना? एक टेट्राबाइट है कि एक 500 जीबी है, क्या है? मतलब मशीन में मेमोरी चाहिए, आपको मेमोरी नहीं चाहिए। सो यू हैव नथिंग हियर, व्हाट विल यू थिंक अबाउट? सो इट्स वेरी डिफरेंट। देन लर्निंग, शिक्षा, ज्ञान पाना एक प्रिविलेज माना जाता है हमारे यहाँ। इट इज नॉट इट इज ए प्रिविलेज। और वो कहता है मनु कि जैसे कोई खनन करने वाला बड़ी मेहनत से खुदाई करके कोई कोयला लेता है और कोई हीरा, इसी प्रकार एक जिज्ञासु विद्यार्थी बड़ी मेहनत करके अपने टीचर से ज्ञान लेता है। मेहनत करके उसको ज्ञान लेना है। आजकल की फिलॉसफी क्या है? उसको आसान करके बताओ बच्चे को, आसान करके, सिंप्लीफाई करके, है ना, सिंप्लीफाई करके। तो बेचारे का लोड नहीं पड़ना चाहिए उसको, है ना, उसकी मेमोरी पे कुछ नहीं जोर पड़ना चाहिए, isn't it? So, computer has 5 parallel processors, human mind has 27 parallel processors, but we don't use, and the result is for everybody to see. Anyway, sir, well, thank you very much. I have some guests. I will not stop. Thank you, sir. I've talked too much, but thank you for listening. Thanks for your patience. And आप मेरे सर ही हैं. We are all teachers. शायद धर साहब मेरी ही आयु के होंगे. मैं 84 साल का हूँ, और ये क्योंकि मैं पहले पैदा हो गया इसलिए मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ.
और कोई भेद नहीं है, हम हैं तो मास्टर सारे। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू सर। सर। रूपा मैम। थैंक यू सर। हम प्रोफेसर कपिल कपूर जी के हृदय से आभारी हैं। सर की विचारशीलता और विद्वत्ता ने हमें न केवल ज्ञान से समृद्धि प्रदान की है, परंतु उनका सामर्थ्य, ज्ञान और शिक्षा विद्या में समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सर, हम आपके साथ बिताए इस समय के लिए सदैव कृतज्ञ रहेंगे और यह आशा है कि हम फिर से आपसे जल्द मिलेंगे सर, परंतु इस बार प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे, वर्चुअली नहीं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये वर्चुअल, आपने वर्चुअल चाय नहीं पिलाई, बाकी तो सब वर्चुअल हो गया। जी, सर, अगर आप आज्ञा दें तो क्या हम कुछ सदन से कुछ प्रश्न ले सकते हैं? हाँ हाँ, लीजिए लीजिए जी, लीजिए। ओवर टू द पैनलिस्ट। Any questions from the panelists? कपूर साहब का व्याख्यान इतना विस्तृत था दैट क्वेश्चन के लिए कोई जगह ही नहीं बची। बहुत ही अच्छा व्याख्यान था। बहुत ही अच्छा आपने सेशन लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ाए कार्रवाई को। सर, एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी। पूछिए। Yes, sir. Sir, in your perspective, what do you believe are the core values that define the ethos of India? कोर वैल्यूज दैट, Define the ethos of India, Indian देखो ethos. बेटा, मैं बताऊं आपको जी, कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में, हमारे चिंतन में अदरनेस नहीं है। देयर इज नो अदरिंग। ये सबसे सबसे बेसिक है हमारा। इसलिए विवेक चूड़ामणि में शंकर कहते हैं कि अगले, शंकर की वो है ना भज गोविंदम, उसमें वो कहते हैं कि धातु पाठ रटने से, ये ज्ञान करने से, ये काम से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष भक्ति से मिलता है। भक्ति में क्या है? समर्पण होता है ना। सो एक व्यक्ति के तीन धर्म कहे गए हैं: अर्पण, समर्पण और तर्पण। अर्पण, किसी के लिए डिवोशन करना, किसी काम को, किसी चीज को, फिर अपने आप को पूरा समर्पित कर देना, उसी में लगा देना। और जब वो हो जाता है तो इदम न मम, ये मैंने अपने लिए नहीं किया, तर्पण कर देना है। इसलिए आदि शंकर विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन, ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन मोक्ष सिद्धयते न अन्यथा। जब तक आप अपना और सब दूसरों को एक नहीं मानने लग जाते, मानना ही नहीं, एक विश्वास कि हम एक हैं, तब तभी मोक्ष होता है। ब्रह्म आत्म, आत्म और सब ब्रह्म, आत्म एकत्व बोधेन, जब ये बोध हो जाता है तो मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं। और भगवत गीता में इसको पैराफ्रेज किया हुआ है, टू सी योर सेल्फ इन अदर्स एंड टू सी अदर्स इन योर सेल्फ, है ना। तो अर्पण, समर्पण और तर्पण। और तर्पण। एंड इसको जब आप समाज में ले जाते हो, इसलिए हमारा समाज जो है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा ड्यूटी ओरिएंटेड इज ए सिंपल पैराफ्रेज ऑफ ऑल दिस। इसलिए समाज ऐसा है कि इस ड्यूटी ओरिएंटेशन के कारण, क्योंकि हमारे गांव में, हमें गांव में अभी भी जब किसी बेटी की शादी होती है तो वो सारे गांव की शादी होती है, एक फैमिली की नहीं होती है। ये सब वैल्यू हम खत्म कर रहे हैं ना। वी हैव बीन डिस्ट्रॉइंग दीज थिंग्स बाय सो कॉल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एंड ऑल दैट। पर एक वो जो जो समाज है, क्योंकि सारे ड्यूटियर दूसरे के लिए, अदरिंग नहीं है। भगवत गीता कहती है, यू आर योर ओन फ्रेंड, यू आर योर ओन एनिमी। एनिमी आपका बाहर नहीं है, द अदर इज नॉट योर एनिमी, वो आपके अंदर ही है। सो उनका गोल ऑफ नॉलेज है पावर। नॉलेज इज पावर। हमारा नॉलेज इज ए प्यूरिफायर। ना पवित्र में से ज्ञानम सदृशम, ज्ञान सदृश प्यूरिफाई करने वाली कोई चीज नहीं है। सो यू प्यूरिफाई योर सेल्फ।
इस कारण ये जो समाज है हमारा, वो है उत्सव, सेलिब्रेटरी। हम लोग हिंदू सिविलाइजेशन, सनातन सिविलाइजेशन इज ए सेलिब्रेटरी सिविलाइजेशन। बर्थ से डेथ, डेथ में भी हम लोगों को भोज देते हैं और बर्थ में भी भोज देते हैं। उत्सव, उपवास, उपवास। ये एक मुल्क है जहां इतने अमीर लोग जो होते हैं वो हफ्ते में 4 दिन खाते ही नहीं। और जैन लेडीज को तो खिलाते हुए पूछना पड़ता है, जी आपका व्रत तो नहीं है आज? उत्सव, उपवास एंड उपासना, उपासना, समाज के ये रूप होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। On behalf of Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya Indore, I extend our sincere gratitude to Professor Kapil Kapoor for sharing his invaluable insights and time with us today. His words will undoubtedly continue to inspire and guide us on our academic journey. Thank you once again, जीते sir. रहो, जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो। Yes, sir. As we draw near to the conclusion of this enlightening Foundation Day celebration, I invite Honorary Secretary Shri Kamal Narayanji Buradia to propose words of thanks. Over to you, sir. वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के 10वें फाउंडेशन डे के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पद्म विभूषण प्रोफेसर कपिल कुमार जी, कुलाधिपति श्री पुरुषोत्तम दास जी पसारी, कुलपति डॉक्टर उपेंद्र धर जी, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नमित गुप्ता, वैष्णव विद्यापीठ के सम्माननीय बोर्ड मेंबर्स, संस्थान के डायरेक्टर्स, एचओडी, फैकल्टी मेंबर्स एवं हमारे छात्र छात्राओं, आज हमारा परम सौभाग्य है कि इंडियन स्कॉलर एवं लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर के प्रोफेसर पद्म विभूषण कपिल कुमार जी आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। सर, हम आपके अत्यंत आभारी हैं। सर, हमारा ये उभरता हुआ विश्वविद्यालय राष्ट्र के नव पुष्प युवा शक्ति को ज्ञान, विज्ञान एवं कौशल रूपी जल से सींचकर देश एवं समाज से संबंधित हर क्षेत्र में अग्रणी रूप से कार्य करने और नित नए शोध कर कुशल बनाने हेतु का संकल्पित है। सर, 140 वर्ष पुरानी ये हमारी वैष्णव ट्रस्ट समूह का एक ड्रीम था, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचना और वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना इसी सपने को हकीकत में बदलने का प्रयास है। हमारा सोच है डेयर टू ड्रीम, ड्रीम बिग एंड एक्ट बिगर। सर, हमारा विश्वविद्यालय SVVV है, S फॉर सुपर, V फॉर वैल्यूज, V फॉर विजन एंड V फॉर विक्ट्री। तो V आर सुपर वैल्यूज, सुपर विजन एंड सुपर विक्ट्री। सर, आपने आपके अनमोल प्रेरणादायी श्रेष्ठ विचारों के गागर में सागर की भांति निराले ढंग से प्रस्तुत किया। ऐसे विचार निश्चय ही जीवन को सुरभित करते हैं, संपूर्ण बनाते हैं, नई दिशा दिखाते हैं, नई ऊर्जा का संचार करते हैं। सर, आपका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी पुस्तक के समान है। आज हमें आपके अपार ज्ञान का लाभ सहज रूप से प्राप्त हुआ है। हम सभी आपके बहुआयामी व्यक्तित्व के प्रकाश में अभिभूत हैं। पूरा वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। निश्चय ही आपके ज्ञान एवं अनुभव से हमारा यह उभरता हुआ विश्वविद्यालय परिवार समृद्ध हुआ है। मैं इस अवसर पर हमारे ऊर्जावान कुलाधिपति श्री पुरुषोत्तम दास जी पसारी एवं हमारे अत्यंत उत्साही एवं समर्पित डॉक्टर उपेंद्र धर का भी इस अवसर पर आभार, फाउंडेशन डे के अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं। विश्वविद्यालय के सभी डायरेक्टर्स, एचओडीज, फैकल्टी मेंबर्स एवं उनके सभी टीम को का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और 10वें फाउंडेशन के अवसर पर उनसे आह्वान करता हूं कि युवा शक्ति को ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें जिसमें उनके एकेडमिक अचीवमेंट के साथ साथ युवाओं में इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल, उनका नैतिक एवं बौद्धिक विकास हो। मैं प्रोफेसर डॉक्टर कपिल कुमार का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। सर, आपका इकबाल और बुलंद हो। हमारा विश्वविद्यालय परिवार ये मंगल कामना करता है कि आप स्वस्थ रहें, शतायु हों एवं देश एवं समाज की निरंतर सेवा करते रहें और आप हमारे विश्वविद्यालय में जरूर पधारें। मैं अंत में यही कहूंगा कि मिलते हैं मिन्नतों से ऐसे मेहमा कभी कभी, हो जाती है किस्मतें यूं मेहरमा कभी कभी, मिलती है किसी से
प्रेरणा कभी कभी हो जाती है, किस्मतें यूं मेहरमा कभी कभी। अंत में आज फाउंडेशन डे के अवसर पर मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हमें वो शक्ति दो, हमें दो वो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर हम डटे रहें, पर सेवा पर उपकार में हम सदा अब अपने इस जीवन को सफल बना पाए, ये शक्ति दो दया निधे। मैं आप सभी को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मकर संक्रांति एवं राम मंदिर की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय वैष्णव, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो क्या है गुप्ता जी, कैन आई टेक लीव नाउ? Yeah, we Yes, just yes. will be Yes, sir. ending, sir, with the national anthem in 52 अच्छा जी, seconds. अच्छा जी, अच्छा जी। Uh, सर थैंक यू, सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। So should I take leave? Yes, sir. I can, As I can, I suggested. can take leave. Okay, Only, sir. sir. Thank you. कि ये नेशनल एंथम के बाद Yes, sir. बताइए। हाँ, National नेशनल Yes, एंथम sir. के Yes, बाद। sir. ठीक है, National ठीक anthem. ठीक। जी जी। As we approach to the culmination of our Foundation Day celebration, I kindly request everyone to rise for the rendition of the national anthem. This symbolic gesture reflects our shared respect and pride for our nation. I request everyone to rise. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अच्छा जी, नमस्कार सबको, नमस्कार। Thank you, sir. सबको Thank you. नमस्कार, Thank you. सबको Namaskar. नमस्कार। Thank you so much, sir. Thank you so much.